So how do you define a variable in Prabhat? Simple. आप left hand side पे variable का नाम लिखो, just write equal to afterwards, and then you put the value in the variable. Similarly, left hand side पे variable, I gave the name of the variable, set equal to, and then the value in the variable. If I visualize the execution, I'll see what is going to happen is we will see. So we'll see something called as a frame here. What happens is this becomes your global variable, right? So there are two types of variables, global and local. You will understand that when we do functions again. But in global frame, you will see, and आप देखोगे it gets executed line by line. So first, which line gets executed? Name equal to Prabhat. And once it gets executed, what happens? There is a variable called as name, and there is a value called as Prabhat associated to the name. If I execute it again, what is going to happen? There is another variable called age, and there is a value 35 which is associated with age. Now I can change the value in a variable. That is why it is called as variable. So if I put Akash here, and if I run this code now, so what happens is first you get name mein Prabhat, then you get age as 35. But when then this line get executed, the line number 8, what happens is name Prabhat will get replaced with Akash. Name will remain the same, but Prabhat will get replaced with Akash. So you can basically also, what you can do is you can change the values in your variable, right? Now let's go to another concept. Okay. Anyone has any doubt, please raise your hand or please ask me question directly by unmuting yourself. Okay. If you want to print anything as an output on Python, what you do is you write print statements. What is print? Print is basically a function which basically prints anything you write inside print to the output. So I can write something like hello to the print. If I want to write something as text, simple text, I'll have to say, inside single quotes. Visualize the execution. Again, just take a look at what is happening on the right hand side, left hand side. So right hand side. And once the print is done, you see this print output here. Hello gets printed. Okay. I'll run the same code again here. You have to create another replica every time. Okay, I'll run the same code here and you'll see that it prints it to the console. Right, we have not installed Python yet on our system, right? We are just using the online code editors. So hello gets printed here on the screen. What if I want to print other stuff, like I want to say hello and then Prabhat and use the name this variable. So I'll just say print hello, then you'll use name here. So if I run this, hello आकाश. Okay, so it gets changed, right? तो प्रभात नहीं आएगा क्योंकि प्रभात पहले था, बाद में आकाश से रिप्लेस हो गया ये. तो हेलो आकाश ऐसे करके आ गया अपना. ठीक है. That is one thing which we learned yesterday. उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? एक ये चीज पढ़ी हमने कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ प्रिंट नेम, मैं अगर मान लो ये नेम लिखने के पहले ही प्रिंट लिख देता हूँ नेम, सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट नेम. ठीक है, तो प्रिंट यहाँ पे भी नेम प्रिंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी नेम प्रिंट कर रहा हूँ. बट होता क्या है, क्योंकि पाइथन इज अ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन स्टफ, राइट? तो दिस प्रिंट नेम विल थ्रो एन एरर, बिकॉज जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है तब एक्चुअली नेम इज नॉट डिफाइंड. नेम डिफाइन कब हो रहा है? चौथी लाइन पे. बट when am I printing it? I'm printing it in the line 2. So if I run this code, I'll see name error, name is not defined. It's a very common thing. ठीक है, name error, name is not defined. So this is what we learned yesterday कि कैसे name error आपको आता है, right? So two concepts. One is how do you define your variable? Second, what is a name error? Let's talk about other concepts. We also learned how to define a function. So we'll see what function is. ठीक है? How does a function works in Python? So function is what? Can anyone tell here what is a function? Can anyone explain what is a function in Python? Guys who understood what function is yesterday. Usha, can you explain what a function is? So a function is a set of program which we need which we need one or more times. So if we made a function, then we can use it whenever we want by just passing the parameters. By just passing the parameter, right? So function is a set of
different tasks which you can basically club together and name inside and give them a name, right? And you can basically pass them parameters so that your function does the same thing every time. Okay, so suppose I just want a simple function. So suppose I want to do this. I want to say age equal to 32, and I want to say some new age is equal to the duplicate of age, which is age into 2, and I want to print the new age. ठीक है, अब सॉरी 30 एज इंटू 2, ये इस तरीके से मेरे को प्रिंट करना है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, राइट? सो सपोज आई वांट टू डू दिस फॉर ऑल द एजेस, 40 के लिए भी करना है, 50 के लिए भी करना है, आई वांट टू डू इट फॉर 60 आल्सो, वांट टू डू इट फॉर 70 आल्सो. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू अगेन राइट द सेम कोड अगेन. So I have to say age equal to 40, the new age equal to age into 2, and then print new age. Then I have to say age equal to 50, new age equal to age into 2, and then print new age, right? Then I'll have to say age equal to 60. मेरे को सबके लिए करना है, 60 के लिए भी, इसके लिए, सबके लिए. New age equal to age into 2, and print new age again. Right, so if I run this code, right, you'll see that it prints 60 first because 30 का double 60 हो गया, फिर 40 का double 80, handed in to 120. Now I have to write the same code, क्योंकि new age is equal to age into 2 है, print new age, same चीज लिखी हुई है, बस age is basically changing. So if I'm writing same code again and again, instead of doing this, what I can do is I can write a simple function. How do you write a function in Python? You say def, and then you say the name of the function. So I'll name the function as twice age, and then you pass a parameter to it. So we'll see how to pass a parameter. So what we'll do is just put this code inside it. Okay, just one second. We'll put this code inside. Okay, one second. In Python, anything which is hello. Okay, so ये एक, अगर आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे एक टैब किया है. Why have I tabbed it? टैब का मतलब होता है कि ये जो कोड है, this particular code is inside twice age. So when I say tab here, it means this particular code will always work inside twice age, and you'll see how that goes, right? So I said age equal to 30, new age is equal to age into 2, and print new age. Instead of mentioning age directly here, you can just take it out and you can pass age as a parameter, right? You can pass age as a parameter, and now what you can do is you can call this function with multiple values like twice age, 630. एक बार 30 के साथ कॉल कर लिया, 40 के साथ और 50 के साथ और 60 के साथ. अब ये काम कैसे करता है ये मैं आपको दिखाता हूं उसमें, पाइथन विजुअलाइजर में. ठीक है, ऐसे काम करता है. तो दिस इज कॉल्ड एज कॉलिंग द फंक्शन, and this is called as defining the function. This is function definition, और ये क्या है, ये function को call करते हैं इस तरीके से. Let's visualize the execution and see what is happening here. ठीक है? So when we click on next, what is going to happen is this code will not run. Code ये run नहीं हो क्योंकि ये definition है, तो definition पढ़ के वो आगे चला जाता है. तो next, ठीक है? डेफिनेशन से उसको कुछ करना ही नहीं है, वो डेफिनेशन देखा उसने सोचा कि जब आगे यूज करना होगा then I'll come into this definition, कोई मतलब नहीं है. तो अब जब twice age 30 कॉल होगा, twice age नाम का फंक्शन है, इसके अंदर हम 30 पास कर रहे हैं. तो अब देखो ग्लोबल फ्रेम, अभी आपको जो फ्रेम दिख रहा है क्या दिख रहा है, ग्लोबल फ्रेम दिख रहा है. ग्लोबल फ्रेम में एक फंक्शन दिख रहा है twice age नाम का, ये लिखा हुआ है ना, ये फंक्शन है. So global frame has only a function which is named twice age, which accepts a parameter called as age. When I click on next, then see what is going to happen here, right? Just see what is going to happen here. So there is another local frame which got created, and it is named as twice age. तो twice age नाम की एक local frame create हो गई, और इसमें age करके parameter था, उस age में अपने आप 30 पास हो गया. 30 got passed into the age parameter automatically. Then there is a new age करके पैरामीटर अभी देखो क्रिएट होगा. न्यू एज में क्या हो गया, एज इंटू 2 किया तो न्यू एज 60 हो गया. एंड व्हेन आई डिड प्रिंट,
तो प्रिंट हो गया 60। एक और चीज आपको दिख रही होगी, रिटर्न वैल्यू नन। रिटर्न वैल्यू नन मींस देयर इज नो रिटर्न वैल्यू। फंक्शंस हैव अ रिटर्न क्लॉज, जहां पे रिटर्न करके कुछ आप वैल्यू रिटर्न करते हो। यू विल अंडरस्टैंड हाउ डज दैट वर्क। ठीक है, तो ये इस तरीके से इट वर्क्स। सो as soon as I click on next, it will come out of the function and there will only a global frame. ये जो local frame है twice age का, ये चला जाएगा। So because call खत्म हो गया है, right, it will go to next line. So if I click on next, you see it going away, चला गया, right? So अभी age करके कोई पैरामीटर या न्यू एज करके कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एज और न्यू एज कहाँ एग्जिस्ट करता है? जब वो ट्वाइस एज के अंदर जाता है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करता, right? Again if I call that function, again you see age में 40 पास हो गया। न्यू एज में क्या हुआ? न्यू एज में 80 पास हो गया। न्यू एज हैज गॉट 80। प्रिंट न्यू एज, obviously we have printed 80. Again when I click on next, the whole frame is gayab, it's not coming anymore, right? So this is how it works. So this part where here this is called as function calling and this is called as function definition. Just by defining a function nothing is going to happen, you have to actually call that function, ये understand रखना, ठीक है? ओके, सो ये एक हमने कल चीज पढ़ी थी कि ये कैसे काम करता है, राइट? इसके अलावा आई आस्क्ड यू गाइस टू लर्न दिस थिंग कॉल्ड एज इफ एल्स। ठीक है, एक बार मैं इफ एल्स बता देता हूं कैसे काम करता है एंड देन वी विल लुक इनटू द सॉल्यूशन कि कल जो मैंने प्रॉब्लम आपको दी थी वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ठीक, सो लेट्स सी हाउ इफ एल्स वर्क्स। ओके, टिल नाउ एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चन? आई एम रेडी टू आंसर। एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चन? प्लीज आस्क मी राइट नाउ। Sir, can I ask something? Yeah. Sir, when you write a print, right? In a Mhm. first example, there is a not in hello, right? We have write a hello in print in a double quoted, right? So there is not mention any variable. So it will be okay, or we have to need to मतलब हमें अगर कुछ लिखना है तो whatever you are writing inside the quotes is considered as a text, right? String. If you are not writing anything inside this, then it is considered as a name or a variable or a function. ठीक है, तो आप देखना क्या ये hello, मैं आपको दिखाता हूँ hello in double quotes, ये hello in single quotes, ये simple hello. Let's see what happens. So it says hello in double quotes, मतलब ये चल गया, hello in single quotes ये चल गया। यहाँ पे क्या एरर मार दिया इसने? name hello is not defined. Okay, अगर प्रिंट के बीच में अगर कुछ डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में नहीं है और सिर्फ लिखा है तो फिर वो वेरिएबल कंसीडर होता है। वो वेरिएबल होगा, कोई भी चीज पाइथन में वेरिएबल होती है, बस यहाँ पे नहीं आएगा। ये चीज और भी कहीं आ सकती है, दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर मैं लिखूं हेलो, ठीक है, मान लो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं हेलो माय नेम इज, यहाँ पे भी सेम एरर मारेगा बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग हेलो टू बी समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी डिफाइंड। यहाँ पे हेलो में मैं कुछ कॉल कर रहा हूं, दैट मींस इट थिंक्स दैट हेलो इज अ फंक्शन। प्रिंट के अंदर कॉल कर रहा हूं, इट थिंक्स हेलो इज एन वेरिएबल। तो इसीलिए जेनरिक एरर देता है कि भाई ये जो चीज है ना, ये जो नाम है ना, ये डिफाइन ही नहीं किया आपने, राइट? मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, a इज इक्वल टू हेलो प्लस 1, यहां पे भी सेम एरर मारेगा ये, नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड। व्हाई? बिकॉज हेलो इज नॉट डिफाइंड। सो उससे कोई मतलब नहीं है वो प्रिंट के अंदर है कि नहीं है। वो अगर कोट्स में नहीं है, कोट्स में नहीं है और स्ट्रिंग इंटीजर नहीं है या फ्लोट नहीं है, तो it should be a name which is already defined either as a function or as a variable or as a class or anything else, but it should be defined there. समझ रहे हो? ओके ओके, You understand, right? या ठीक है, कुछ भी करूं मैं वो एरर सेम मारेगा, नेम इज नॉट डिफाइंड। ये ध्यान रखना, नेम एरर का मतलब होता है कि ये नेम आपने डिफाइन ही नहीं किया यहाँ पे कहीं पे भी कि वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, लिस्ट है, क्लास है, फंक्शन है, वेरिएबल है, दैट इज द एरर। ठीक है, any other questions anyone wants to ask? हेलो सर। Hi. सर प्रिंटेक का वर्क सिर्फ डिस्प्ले करना है क्या? प्रिंट का काम, हाँ यार, सिर्फ डिस्प्ले करना है, और कोई काम नहीं है प्रिंट का, सिर्फ डिस्प्ले करता है।
और काम करवाना है तो अपना अलग फंक्शन बना लो। अब देखो मैं एक फंक्शन बनाता हूं, डेफ डबल प्रिंट, क्या प्रिंट जैसा फंक्शन बना लेता हूं मैं कहता हूं इसको एक कोई पैरामीटर दोगे अगर तुम आउटपुट जो भी प्रिंट करना है तो इसको 2 बार प्रिंट करेगा। अपने से बना लो फंक्शन, कॉल करता हूं मैं डबल प्रिंट पे, जैसे प्रिंट कॉल कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने कहा हाय माय नेम इज प्रभात, ये डबल प्रिंट के साथ चलो कॉल करते हैं एक बार, देखो 2 बार आ जाएगा अपने आप ही, राइट। तो प्रिंट इज अ डिफाइंड फंक्शन एंड यू कैन क्रिएट मल्टीपल फंक्शंस यूजिंग प्रिंट, या कुछ भी और करके फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया किरण, समझ में आ गया? यू अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। यस सर। Someone wanted to ask something? Hello. Okay, no problem. ठीक है, तो अभी मैंने इसके अलावा 2 हेलो Hello, sir. Yes, Actually, sir, actually, I have taken the value from the user 1 to for the function. Then I pass the variable from the function, but it taking the value, but it not giving the output. कोई बात नहीं है, I'll tell you the answer, right? So just let me so how many of you read what is if? मैंने कल 2 चीजें पढ़ने को, एक चीज पढ़ने को बोली थी, if कैसे काम करता है। How many of you have read it? I have read, sir. How many of you have read it? Raise your hands. जिसने नहीं किया मैं उससे पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम है भाई, इतना तो पढ़ सकते थे। लेट मी सी किसने नहीं पढ़ा है। और जिसने बोला है मैं पूछ लूंगा कि पढ़ाई क्या पढ़ा है, क्या समझ में आया, तो सोच समझ के देना जवाब। ओके, सो लेट मी आस्क सचिन व्हाई डिडंट यू रीड लर्न? अच्छा आप ऊपर चले गए। सचिन सबाहत आपने भी तो पढ़ा होगा, तभी तो आपने क्वेश्चन किया, राइट? अभी आपने हटा दिया। सो आलोक चौधरी, यू हैवंट रेड व्हाट इफ इज, या आप कल की क्लास में नहीं थे? आलोक चौधरी, आलोक can you hear me man? Alok, Dikshant, why haven't you done it? No, sir, I can't. You haven't done it? No, sir. नहीं तो if भी नहीं पढ़ा, मैंने बोला था कि if पढ़ लेना एक बार, क्या होता है? नहीं पढ़ पाया सर। टाइम नहीं मिला? नहीं, टाइम का बात नहीं सर, वो थोड़ा सा एसक्यूएल में ही रह गया मैं, एसक्यूएल का ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने में रह गया मैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी बता दूंगा एक बार, ठीक है यार, छोटा सा था, कर लेते है ना, मैं मान रहा हूँ एसक्यूएल है, बट करना तो पड़ेगा सारा कुछ, है ना। अब मनीष आपने नहीं किया, मनीष यादव? सर कल ही मैंने आधा ज्वाइन किया था, फिर नेटवर्क इशू की वजह से लास्ट का पार्ट रह गया था, तो मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। अभी जो समझाया वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ थोड़ा समझ पड़ा है, फिर से देखूंगा तो थोड़ा चलो प्रैक्टिस अभी में देखना नहीं, अभी सिर्फ प्रॉब्लम लगवाएंगे अपन सीधे, तो आएगा समझ में। तो मैं एक बार चलिए। बता देता हूं आप सब लोगों को कि इफ कैसे काम करता है और कल जो क्वेश्चन दिया था उसको कैसे सॉल्व करना है, एंड देन यू विल हैव टू डू इट एंड सबमिट इट इन द सेशन। ओके, तो अभी क्या है यार, देखो एक सिंपल जो कोड जब आप लिखते हो ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कोड और एनीथिंग यू डू इन योर लाइफ, राइट? So let us take a simple example. Suppose, right, like life में आप अपने decisions बनाते हो. Suppose you are going on a trip. ठीक है? On a trip, आपने 2 destination identify करी. Suppose you live in पुणे. आप पुणे में रहते हो, ठीक है? पुणे में अलीबाग पास में है, right? और महाबलेश्वर पास में है. People from महाबलेश्वर and people from Pune would know. मैं गया हूं वहां पे दोनों जगह पे, तो I know. तो प्लान ऐसा है कि
अगर मैंने एक प्लान बनाना है, मैंने कहा कि यार इफ, ठीक है, टाइम जो है, ट्रिप का प्लान हमको करना है, तो हमने बोला कि यार अगर टाइम जो है, या टाइम अगर है हमारा इवनिंग में होगा, ठीक है, मतलब इफ टाइम इज इन इवनिंग, suppose, okay, let's take an example. So what we are dependent on getting a cab, we are dependent on getting a cab कि कैब जब आएगी तभी हम ट्रिप पे जाएंगे, राइट? अभी हमको कंफर्म नहीं है कि when we will get a cab. So suppose हमको दो चीज बोली गई है, टाइम ऑफ गेटिंग अ कैब बोला गया है कि भाई या तो इवनिंग होगा या तो मॉर्निंग होगा। तो अगर इवनिंग का टाइम है ऑब्वियसली, तो हम अलीबाग जाएंगे। अलीबाग क्यों जाएंगे? क्योंकि इवनिंग में जा सकते हैं अलीबाग। मॉर्निंग का टाइम होगा तो हम महाबलेश्वर जाएंगे। महाबलेश्वर क्यों? क्योंकि इवनिंग में बंद हो जाता है महाबलेश्वर, शायद को 5 बजे के आसपास, राइट? So that is our plan. If we get the cab in morning, then we'll go to Mahabaleshwar. If we get the cab in the evening, then we'll go to Alibag. Let us create this code in Python, and then you will understand. So let's create a variable time of getting a cab. ठीक है, और इसको बाद में फंक्शन में डालेंगे अपन। तो मैंने अभी इसमें वैल्यू एक अपने से डाली इवनिंग, टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है? मुझे प्रिंट कराना है कि वी विल गो टू द ट्रिप इन द मॉर्निंग और वी विल गो टू द ट्रिप इन द इवनिंग। सो विल जस्ट से सिंपल, जैसे मैंने यहां पे बोला इफ, सिंपल प्लेन इंग्लिश, राइट? इफ टाइम ऑफ गेटिंग कैब इक्वल टू इवनिंग। यहां पे इक्वल टू असाइनमेंट के लिए होता है और डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए होता है। तो इफ टाइम ऑफ गेटिंग अ कैब इज डबल इक्वल टू इवनिंग, तो एक सिंगल कॉलन आप एंटर करोगे, अपने आप ही वो टैब लेकर के चला जाएगा, क्योंकि वो इफ के अंदर एग्जीक्यूट होगा। जो नेक्स्ट कोड आप डालोगे दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड इनसाइड द इफ। तो आई विल से प्रिंट will go to the ship, we will go to, where we will go? Alibag, right? अब else part बनाना है इसका, else elif करके बनाते हैं हम, इसमें एक elif करके चलता है। तो टाइम ऑफ गेटिंग अ कैब डबल इक्वल टू मॉर्निंग है अगर, तो कहां जाएंगे हम? टू महाबलेश्वर। और एल्स मतलब अगर इवनिंग में नहीं आई या मॉर्निंग में भी नहीं आई, क्या भी नहीं आई मान लो, ठीक है, वी विल चिल आउट एट होम। भाई अब जब आई नहीं क्या, या नाइट में आई, तो कहां जाएंगे? अब कहीं नहीं जा सकते। लेट्स रन दिस कोड। सो क्योंकि इसमें इवनिंग डाल रखा है, तो क्या बोल रहा है? वी विल गो टू अलीबाग। इसको यहां पे चेंज कर देते हैं, मॉर्निंग कर देते हैं। तो कह रहा है वी विल गो टू महाबलेश्वर, और इसको कर देते हैं भाई नाइट, तो इट सेज वी विल चिल आउट एट होम। अब इसी कोड को अपन फंक्शन में डाल देते हैं, ठीक है। अगर मुझे इस कोड को फंक्शन में डालना है, तो पैरामीटर क्या होगा उस फंक्शन का? व्हाट विल बी द Time getting a cab. टाइम ऑफ गेटिंग अ कैब, राइट? ओके, सो मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंज क्या हो रहा है? टाइम ऑफ गेटिंग अ कैब चेंज हो रहा है। तो डेफ विल वी गो टू अ ट्रिप, इतने बड़े नाम होते नहीं है, बट मैं डाल रहा हूं, ठीक है। और इसको मैंने टाइम ऑफ गेटिंग अ टैब फंक्शन बनाया और इसको यहां पे कर दिया मैंने, ठीक है। और लेट्स नाउ कॉल दिस फंक्शन टू सी वेदर विल बी गोइंग इन टू अलीबाग, है ना, या फिर व्हाटएवर इट इज। तो यहाँ पे एक बार मॉर्निंग में कॉल करके देखते हैं, एक बार इवनिंग करके देखते हैं, और एक बार नाइट करके देखते हैं, ठीक है। तो यू सी, so for the first one it says we'll go to Mahabaleshwar, for the second one it says we'll go to Alibag, for the third one it says we will chill out at home, right? So this, I'll tell you how this works, okay? तो होता क्या है कोड में, पहले आपने if का मतलब एक सिंपल, जैसे हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अगर ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा, कुछ भी नहीं हुआ तो ये करूंगा, राइट? सिंपल। सो जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारी सोच होती है लॉजिक की, वैसा इफ और एल्स का लॉजिक होता है। अगर ये हुआ, अगर ऐसा हुआ तो ये टास्क परफॉर्म होगा, अगर ये हुआ तो ये टास्क परफॉर्म होगा, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये टास्क परफॉर्म होगा। मेरे को ये बताओ, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, प्रिंट के अलावा अगर मैं यहाँ पे कोई और चीज लिखता हूं,
मेरे को अच्छा चलो इसका आंसर दो, ठीक है, लेट मी गिव मी एन आंसर। तो नो कि यू गाइस अंडरस्टैंड राइट, उधर पे कर लेंगे अपन तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको टफ बना रहा हूँ आप लोग के लिए ताकि समझें आप, ठीक है। Let's visualize the execution and you guys will tell me what is going to happen to. Okay, so first of all I want to know what is going to happen to A, ठीक है। A करके यहाँ पे डाला क्योंकि प्रिंट के अलावा और भी चीजें हम डाल सकते हैं, तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसको हम देखते हैं, रुको पहले इसको एडिट कर देते हैं ताकि आपको कोड समझ में आ जाए, देन विल एग्जीक्यूट दिस। करते हैं कैसे, देखो ये चलता है। नेक्स्ट, तो ग्लोबल फ्रेम में मेरे पास क्या है, वी विल गो टू अ ट्रिप, और क्या है, ए करके भी एक वेरिएबल बन गया। ग्लोबल फ्रेम इसलिए क्योंकि फंक्शन के बाहर डिफाइंड, एकदम बाहर डिफाइंड है, राइट। नाउ इट गेट्स कॉल्ड, will we go to a trip, time of getting a cab gets a value of morning। अब देखना if कैसे चल रहा है, if time of getting a cab double equal to evening, क्या होगा, लाइन नंबर 3 में जाएगा ये कोड, लाइन नंबर 4 में जाएगा, या लाइन नंबर 5 में चला जाएगा। What is going to happen here? Is the code going to go on 3, 4 or it is going to go on 5? 5. 5. How many people think it is going to go on 3? How many people think, अच्छे से देख लो एक बार इसको, मेरे को ये बस बता दो कि अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो कौन सी लाइन में जाएगा कोड, 30 पे, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा या 5 पे? Number 5. Number 5. How many people think that it is going to go to line number 3? It will go to line number 2 first, then yes sir, line number 2. लाइन नंबर 2 पे तो आ गया ये, जब मैं नेक्स्ट हाँ, करूंगा तो कौन सी लाइन पे जाएगा? Okay, it's 5 पे। 5 पे जाएगा, ओके। 3 जो सोच रहा है वो बताएगा मुझे क्यों 3 सोच रहा है? People who are thinking 3, can they tell me why they are thinking 3? Siddesh? No, yes sir. You are saying that it is going to go to 3? No. Okay, आपका hand raised है। अच्छा वो सॉरी, नहीं वो पहले से ही था, सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा, ओके। Anyone who thinks कि लाइन नंबर 3 पे जाएगा, रेज कर दो यार अपना हैंड। Purnish, you think that it is going to line number 3? Yes, sir. Why? Why do you think that? सर इसके बाद प्रिंट है, देखो, ठीक है। I want to know why do you think that? मतलब एक्चुअली ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन तो वही होता है ना, पहले 2 पे गया फिर 3 पे गया, इसीलिए ना आप कह रहे हो, राइट? यस सर। है ना, इसीलिए मनीष आप भी इसीलिए कह रहे हो, राइट? यस सर। हाँ ठीक है, एकदम सही कह रहे हो आप। देखो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के हिसाब से 2 के बाद 3 में आना चाहिए, पर होता क्या है जब आप इफ के अंदर कोई चीज डालते हो, कैसे पता ये इफ के अंदर है? क्योंकि इफ से एक क्लास स्पेस दूर है, इफ के अंदर पड़ा हुआ है ये, और कोई एल्स या एलएफ नहीं आया है, मतलब इफ के अंदर पड़ता है ये। अभी जब तक कोई एलएफ या एल्स नहीं आएगा तो उसके अंदर एक टैब स्पेस से जो भी चीज है वो इफ के अंदर का माल है, इफ के अंदर का मटेरियल है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ना, तो इसके अंदर का जो मसाला है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। सॉरी, using the again Hindi, right? If this condition does not get satisfied, the lines which are coming directly under if, they are not going to get executed at all. See how this works. Let's click on next. Did it get executed? No, right? It skipped 3 and 4, right?
स्किप कर गया ना? Yes, sir. यस Okay. Yeah, good. Yes, sir. Now, what about कंडीशन चेक कर रहा है. हाँ, कंडीशन चेक करा और ऑब्वियसली कंडीशन चेक करा. डबल इक्वल टू इवनिंग, क्या टाइम ऑफ गेटिंग अ कैब में क्या वैल्यू पड़ी है? अभी मॉर्निंग पड़ी हुई है. मॉर्निंग इक्वल टू इवनिंग तो होता नहीं है. ये देखो ना, इसमें मॉर्निंग पड़ा हुआ है ना? सो मॉर्निंग इक्वल टू इवनिंग सही नहीं है, तो इट इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट वट एवर इज इट इनसाइड इफ. ठीक है. कंसिडर इट एज ए डोर, राइट? मतलब डोर के अंदर जाने नहीं मिलेगा अगर आप डोर पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो. ठीक है. नए साल में आप गए हो पार्टी करने, बोल रहे स्टैग एंट्री अलाउड नहीं है, आप अकेले गए हो 4 लड़कों के साथ, घुसने ही नहीं देगा आपको. उसको वैसे सोचो आप. ठीक है. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. नाउ दिस कंडीशन, else time of getting a cab equal to morning, will this condition be satisfied or not? Can you tell me? elif का मतलब होता है या फिर अगर ऐसा हो तो. Will this condition get satisfied or not? Satisfied. So it is going to go to 6 or it is going to Satisfied. go to 8? 6. 6. 6. तो ये 6 पे गया, इसने प्रिंट किया. ठीक है. And it goes directly to C. It does not go to else part. It did not go to any other code. You see, saw that 6 execute करके बाहर भाग गया वो. Can anyone tell me why did that happen? Sir, Because Exit करता है first line. Condition is satisfied. Yes, exactly. So if works that way. अगर if में आप elif कर रहे हो ना, if के अंदर, तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. वो ये मान के चल रहा है कि आपने 4 कंडीशन जो रखी है उसमें से एक ही सेटिस्फाई होगी. जैसे ही सेटिस्फाई होगी वो चला जाएगा बाहर. तो इसने प्रिंट कर दिया. We will go to Mahabaleshwar. Let's see the next part. Def, will we go to a trip? sir, Yes. Hello? Yeah. sir, elif और else में actual difference क्या होगा? अभी पता चल जाएगा आपको देखते देखते. अभी समझा दूंगा मैं. ठीक है. अभी आ जाएगा. Okay, sir. ठीक है. अब if time of getting a cab equal to evening, what is going to happen now? कौन सी लाइन नंबर पे जाएगा? 3rd. थर्ड पे. क्यों? क्योंकि third. टाइम ऑफ गेटिंग अ कैब में इवनिंग पड़ा है Condition और उसको मैं इवनिंग के साथ कंपेयर कर रहा हूँ. अच्छा, इसमें तो डबल कोड दिखा रहा है, इसमें सिंगल कोड दिखा रहा है. दिक्कत तो नहीं ना कंपैरिजन में कोई? No sir. No, sir. हाँ, वो सेम था, ही. satisfy करता है पाइथन को. ठीक है. तो मैंने किया प्रिंट किया इसने, और अब कहाँ जाएगा? कौन सी लाइन नंबर पे? Out of the function. अब 3rd. जाएगा सीरियल 23 नंबर, 23rd पे जाएगा. अभी 23rd पे चला गया. ठीक है. अब इसको नेक्स्ट करते हैं फिर से. अब देखते हैं क्या हो रहा है. अब जिसको जिसको एल्स में कंफ्यूजन उसको समझ में आ जाएगा. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इवनिंग वाली? No, sir. नो सर. तो कौन सी लाइन पे जाएगा? Else 8 नंबर पे. 5. पहले 5 पे 5 जाएगा. पे, sir. 5 भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो कहाँ जाएगा? 8 पे. 8 पे जाएगा. 8 पे जाता नहीं है क्योंकि 8 पे कोई कंडीशन नहीं है. 8 का मतलब ये है कि जब कुछ नहीं मिल रहा तो यार यही कर सकते हैं. Okay sir. है ना? तो we will chill out at home, it will print and it will go out. तो ये हो गया मेरा. ठीक है. अब मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दो. सर डाउट. मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा. हाँ ठीक है. डाउट पूछो. Sir, I have also doubt. मैं पूछो. Yes. So the thing is, if my condition is getting, if there are only 2 conditions, so if my condition is getting satisfied in if and elif, is it mandatory to write else? No, it's not. तो नहीं लिखा तो भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा यार. else लिखने का मतलब ये हुआ ना कि आप देखो, मैं दिखाता हूँ else की गलती क्या है. अब देखो तुमको समझ में आएगा. इसको सबको हटा देते हैं अपन. अब मान लो अरे भैया! इस फंक्शन में फर्जी डेटा डाल दिया, कुछ भी डाल दिया. देखो क्या होगा. विजुअलाइज करते हैं एग्जीक्यूशन. इस डेटा का कोई मतलब है? कहीं मॉर्निंग इवनिंग लिखा है? कुछ नहीं लिखा, राइट? अब देखो, विल वी गो टू अ ट्रिप? इफ में गया, सेटिस्फाई नहीं हुआ. एलिफ में गया, सेटिस्फाई नहीं हुआ. एल्स में जाकर के फिर भी लिख दिया इसने चिल आउट एट होम. ठीक है.
विल गो टू अ ट्रिप, इस बार मैंने 1 पास किया, 1 नंबर पास किया है, फिर से इसने कंपेयर किया, फिर एल्स में जाकर के प्रिंट करके निकल गया। तो अगर आपको मालूम है कि यही दोनों कंडीशन है, देयर इज नो एल्स पार्ट, तो मत लगाओ एल्स। Okay, cool. है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इफ का जो दूसरा है वो एल्स ही है। जैसे अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, राइट? तो मैं पहले लेवल पे कंपैरिजन कर लूं 0 है कि नहीं है, उसके बाद एल्स में एलिफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है वो एल्स में ही जाएगा। डिवाइड होगा कोई भी नंबर किसी से 2 से, तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। ठीक है? और बताता हूं तुमको इसको कैसे कर सकते हैं। तुम मान लो कि मैं कहता हूं मैं सिर्फ चिल आउट तब करूंगा जब कैब नाइट में आएगी। ठीक है? तो आई एम सेइंग कि आई जस्ट चिल आउट व्हेन द कैब कम्स इन एट नाइट। तो वो यहां ठीक करते हैं। सपोज आई जस्ट वांट टू चिल आउट व्हेन द कैब कम्स एट नाइट। ठीक है? मैंने कहा कैब जब नाइट में आएगी तो मैं कैब वो करूंगा चिल आउट। तब मैं लिखूंगा एलिफ टाइम ऑफ गेटिंग अ कैब इक्वल टू नाइट, राइट। इसमें मैं क्या कहूंगा, नीचे वाला कंडीशन डालो। प्रिंट आउट चिल आउट एट होम। और अगर कोई ऊटपटांग वैल्यू डालता है एल्स पार्ट में, तो मैं लिख दूंगा रॉन्ग इनपुट सेलेक्टेड, री एंटर। ठीक है? सर आई हैव वन डाउट, आई एम सो सॉरी, मैंने लेट ज्वाइन किया। आपने ये जो हैश करके किया है ना, ये कोई कमेंट कमेंट है? कमेंट है क्या वो? हाँ जी, कमेंट है। ओके। कमेंट इज नॉट गेट राइट। और ठीक है? एलसीएम के पहले और कुछ पढ़ाया क्या आपने? यार थोड़ा सा तो पढ़ाया मैंने, हाँ, वेरिएबल वगैरह। कल आप आए थे ना सेशन में? हाँ कल थी मैं। हाँ ठीक है, सेम चीज कराई है मैंने। ठीक है। ठीक है? तो अब देखो, अब यहाँ पे अब ये सही हो गया। तो अब अगर मैं लिखूंगा विल वी, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे अब लिखूं अर्निंग, यहाँ पे मैं लिखूं इवनिंग, यहाँ पे लिखूं नाइट, और यहाँ पे मैं गलत वैल्यू दे दूं। ठीक है? सही आ गया। तो 3 में तो मेरे सही सही इनपुट थे, तो मैंने सही आंसर दे दिया। और चौथा, भाई इन तीनों के अलावा मैंने कहा है कोई और इनपुट दोगे तो दैट इनपुट इज रॉन्ग, तो आई एम जस्ट सेइंग इन द एल्स पार्ट रॉन्ग इनपुट सेलेक्टेड, प्लीज री एंटर, राइट? सो हियर यू कैन बेसिकली से दैट this is the input I am expecting, but if you don't give out these input, ठीक है, please re-enter or please choose you know any one of morning, evening or night। आप ऐसे करके करा दो। कई बार क्या होगा कि भाई यूजर ने अगर दिया तो यूजर को भी पता चल जाए कि अच्छा ओके इसने फंक्शन कुछ मतलब, so user also knows ना कि your function only expects these 3 as input parameters। तो else part में you can pass on that message to user, है ना? Okay, let me ask you a question now, guys. Here. इसको फिर से करते हैं अपन। मेरे को ये बताओ, मुझे सबसे आंसर ये जानना है जानना है, यहीं पे चलाता हूँ, रुको मैं इसको। हाँ, मुझे सबसे ये आंसर जानना है कि ये जब कोड पूरा खत्म हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या होगी? कोई वैल्यू होगी या एरर होगा? जब ये सारे फंक्शन चल जाएंगे एक बार, ए की वैल्यू क्या होगी? कोई वैल्यू होगी या एरर होगा? तो आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन फ्रॉम यू, राइट डाउन ऑन चैट। I think gives answers 6. Write down on chat, है ना? So someone is saying 6, please write down on chat. Everyone write down on chat.
Ram Babu is saying 6. A lot of people are saying 3. Someone is saying 0, 0. Zero, people saying 0. Okay, let us run it here and see what happens, right? Let us, अब आपने अपने अपने दिमाग में आंसर बना लिया, अब देखते हैं कैसे चलेगा ये. ठीक है, ग्लोबल फ्रेम बना मेरा, वी विल गो टू अ ट्रिप करके. ठीक है, ए में 0 आ गया, अब इसको हम कॉल करते हैं. लोकल फ्रेम में आया, टाइम ऑफ गेटिंग कैब मॉर्निंग, इवनिंग. अभी तो इवनिंग वाला चला नहीं, 5 नंबर पे आया, प्रिंट किया. What does it say? Unbound local error, local variable A, reference before assignment. I'm going to send this message to you and I want you guys to take a look at this error. एक बार इस error को पढ़ो आप. क्या लिखा है error कोई पढ़ के बताएगा मुझे और समझ को, मतलब try thinking कि what is this error exactly? Unbound local error, local variable A, reference before assignment. What does this mean? सर हम पैरामीटर पास नहीं किया ना सर हमने, इसलिए वो लोकल रेफरेंस एरर आया. ना, आपने एक ऐसा वेरिएबल यूज किया यहाँ पे जो कि लोकल है, इट्स नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल. भले ही आपने ए डिफाइन कर दिया बट ए ग्लोबल फ्रेम में डिफाइंड है, इसके अंदर नहीं डिफाइंड है, तो इसलिए ये एरर आया है. ठीक है, इसीलिए एरर आया है. लोकल वेरिएबल ए रेफरेंस. हाँ, ये लोकल वेरिएबल है. दिस इज अ लोकल वेरिएबल ऑफ विल वी गो टू अ ट्रिप, इट्स नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है, तो इसीलिए ये एरर है. तो अगर मुझे इस कोड को चलाना है ना, तो मुझे क्या करना होगा? आई हैव टू जस्ट से दिस. अभी चला के देख लेते हैं. ठीक है, वी गो टू महाबलेश्वर. तो यहां पे मुझे एक काम करना होगा, लिखना होगा ग्लोबल ए. ठीक है, मुझे सिर्फ मेंशन करना है ग्लोबल ए. ग्लोबल ए का मतलब ये हो गया कि यहां पे मैं आके ए को रेफरेंस करूंगा, but that A is a global variable, not a local variable. So do not give me that error, unbound local error, local variable A, reference before assignment. I want you guys to, you know, save this error somewhere. कभी भी कोई error मिले ना तो उसको save कर लो, क्योंकि error सबसे important होता है. Right? Through errors only you learn programming. Programming जो है concept से नहीं सीखी जाती. अगर कोई कहता है मैं concept पढ़ा दूंगा तुम programming सीख जाओगे, तो पागल बना रहा है. Programming सीखने का तरीका क्या है कि भाई error resolve करो and you will become a programmer if you can resolve errors, right? Global A लिख करके हम ये error resolve करेंगे. ठीक है, हमने global A लिखा, we will resolve this error. ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि मैंने जब ये error को resolve कर दिया global A लिख करके, what is going to be the answer of print A? अब मुझे बताओ कौन बोल रहा है 6, कौन बोल रहा है 3, कौन बोल रहा है 0? जीरो कौन कौन बोल रहा है बताओ मुझे, हैंड रेज करो एक बार. कौन कौन 0 बोल रहा है? हाउ मेनी पीपल आर सेइंग 0? मनीष, किरण, दीक्षांत आर सेइंग 0. ओके, एनीवन हु सेज 6 आंसर होगा? 6 कौन है? 6 राम बाबू. या ओके, ठीक है, चलो अपने अपने मन में आंसर सोच लो, फिर देखते हैं क्या होता है. भाई एक ही आदमी ने सही आंसर दिया, बाकी सबने गलत आंसर दिया. यू अंडरस्टैंड? पहली बार ये कहां जाएगा? ये वाले कोड में जाएगा, मॉर्निंग वाले कोड में. तो a इक्वल टू a प्लस 2 करेगा, तो कितना हो गया? a कितना हो गया? 2 हो गया. फिर दूसरी बार इवनिंग वाले कोड में गया, a इक्वल टू a प्लस 1, अभी 2 था, 2 प्लस 1 कितना होता है? 3 होता है. फिर चौथी, इसके बाद नाइट वाले कोड में जाएगा. नाइट वाले कोड में a में कुछ ऐड नहीं हो रहा, अभी भी एक ही वैल्यू 3 है. और लास्ट में ये किसमें गया? एल्स वाले पार्ट में. तो 3 प्लस 3 कितना होता है? 6 होता है. समझ में आया? समझ में आ गया सबको? मैं एक बार चला के दिखा देता हूं आपको. a इज इक्वल टू 0,
मॉर्निंग। देखो अब मैंने यहाँ ग्लोबल ए डिफाइन कर दिया, तो ये अब ए ग्लोबल को ही रेफरेंस करेगा। सर अगर दो पैरामीटर लेते हैं सर, ए लिए हैं आप सर, अगर बी भी अगर ले ले, बी इक्वल्स टू समथिंग, सर यहाँ पे चलेगा सर, ग्लोबल ए बी डालना होगा वहाँ पे क्या? ग्लोबल ए लिखो, ग्लोबल बी लिख दो अलग से। बी भी ग्लोबल है क्या? बी तो हमने डिफाइन ही नहीं किया कहीं पे ना। वैसे अगर मे बी डाले जाए तो करके देख लेंगे और क्या करते हैं। रुक जाओ, पहले इसको देखो, पहले फोकस इसमें करो। yes, ठीक sir. है, ए देखो अभी ए 0 है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 चल गया, 2 आ गया, वापस 20वें लाइन पे गया। अब कहाँ जाएगा? इधर से तीसरे वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखना ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 क्या हो गया? 3 हो गया। ए की वैल्यू दिख रही है 3 होते हुए। ठीक है, नाइट वाले कोड में गया, नाइट वाले कोड में क्या हुआ? वी विल चिल आउट एट होम प्रिंट किया, ए की कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही। और लास्ट में ये एल्स पार्ट में गया, एल्स पार्ट में क्या किया इसने? देखो कंडीशन सारी एक एक करके चेक करता है वो, लास्ट में एल्स में जाता है। रॉन्ग इनपुट सेलेक्टर, और यहाँ इज इक्वल टू ए प्लस 3 किया, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 6। क्या प्रिंट करा दिया? 6। समझ में आ गया सबको या कंफ्यूजन है किसी को? सर ये ग्लोबल लिखने से उसका वेरिएबल डिफाइन हो गया क्या? ग्लोबल लिखने से डिफाइन हुआ कि वेरिएबल आप ग्लोबल वाला यूज करो। वहां पे आपको दिखाया ना मैंने, ग्लोबल फ्रेम होती है एक। हाँ। जो भी फंक्शन के अंदर डिफाइंड है वो उसका लोकल वेरिएबल है, फंक्शन के बाहर जो डिफाइंड है वो ग्लोबल है। फंक्शन के अंदर अगर आपको कोई ग्लोबल चीज यूज करनी है तो आप लिख दो ग्लोबल और वो ग्लोबल हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज दिख, ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख दूं b इज इक्वल टू 0, ठीक है, करके देख लेते हैं जो इन्होंने बोला है। मैं यहां पे दे देता हूं b इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं b इज इक्वल टू 0, और मैं यहां लिखता हूं b इज इक्वल टू b प्लस 8। चलो चेक करते हैं क्या होता है। तो ये तो शुरू में ही कोड में आ रहा है, ये बार बार b में 8 जुड़ना चाहिए, तो देखना क्या होगा भैया। ठीक है, लेट्स सी। तो मैंने a इज इक्वल टू 0 ग्लोबल फ्रेम में डिफाइन किया, b इज इक्वल टू 0 ग्लोबल में डिफाइन किया। देखो ठीक है, ये चलो ये फंक्शन कॉल हो गया 22वें नंबर पे, b इज इक्वल टू 0। अब देखना अंदर एक और वेरिएबल डिफाइन हो गया b इज इक्वल टू 0 नाम का, b इज इक्वल टू b प्लस 8 कर दिया मैंने। ये वाला b जो है ना और ये वाला b दोनों डिफरेंट है भाई। दिस b एंड दिस b इज टोटली डिफरेंट, राइट? दिस b is a global variable, this b is a local variable, inside will we go to a trip। तो अब b is equal to b plus 8 तो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है सारा कुछ, लेकिन जैसे ये फंक्शन से बाहर आएगा ना तो b चला जाएगा हवा में, ग्लोबल उसके अंदर वाला b, और अब फिर से b is equal to b plus 8 हो जाएगा, मतलब b का 8। समझ में आ रहा है? और हम अगर ग्लोबल लगा देंगे b इक्वल टू b प्लस 8 के आगे, तो फिर वो प्रिंट करेगा? ऐसे नहीं होगा फिर आपको यार। अब देखो कुछ ना प्रॉब्लम होगी उसमें, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। लेट्स करके देख लेते हैं। b इज इक्वल टू 0 किया, फिर मैंने लिख दिया ग्लोबल b। लेट्स सी। प्रिंट भी लिखना पड़ेगा ना सर? असाइंड टू बिफोर ग्लोबल डिक्लेरेशन। हाँ, तो ये नहीं हो सकता, जिस चीज को आपने डिफाइन किया उसको डिफाइन करना पड़ेगा, बाहर ही होना चाहिए, राइट? तो हाँ, ग्लोबल b लिख दो, तो b इज इक्वल टू b प्लस 8। इसमें b इज इक्वल टू b प्लस 8 है। अब चलो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलो बताओ मेरे को। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्लोबल b, और यहाँ पे मैंने लिख दिया b इज इक्वल टू 0, और यहाँ मैंने लिखा b इज इक्वल टू b प्लस 8, और यहाँ पे मैंने प्रिंट a किया, फिर मैंने किया प्रिंट b। मेरे को बताओ b में क्या प्रिंट होगा? What is going to get printed on b? तो इनसाइड नॉट 0 सर, ग्लोबल के इनसाइड तो नहीं है ना, b 0 सर 0 होगा। 0 होगा सर b, क्यों 0 प्रिंट होगा b? सर फंक्शन के लाइन बाहर बाय लाइन। यार ग्लोबल तो डिफाइन कर दिया ना मैंने b। अब 0 ही तो होगा। 0 ही फंक्शन के अंदर डिफाइन Zero। करना है। क्या क्या बोला उषा? क्या बोला? 8 होगा 8। 8 होगा 32। इफ के पहले भी डिफाइंड है ये, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है। जितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा ना उतनी बार b में 8 जुड़ेगा, राइट? यहां मैंने b इज इक्वल टू 0 डिफाइन किया, यहां पे मैंने b को ग्लोबल बना दिया,
मतलब मैंने बोला यार ग्लोबल वाला बी यूज करो, अब b इज इक्वल टू b प्लस 8 हो रहा है, पहली बार फंक्शन कॉल हुआ तो b में 8 आ गया, दूसरी बार फंक्शन अच्छा कॉल हुआ 8 तो है, 16। 8 होगा। अरे तो मुझे भाई 0, 4 बार कॉल हो रहा फंक्शन तुम्हारा, ये भी तो देखो ना। अच्छा 0 दिख रहा था, हाँ 0 दिख रहा था ना, 8 है। हाँ तो जी प्रभात सर, हाँ यार बोलो। एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे प्लीज, ग्लोबल और लोकल नहीं समझ आ रहा है मुझे। नहीं समझ में आ रहा है ग्लोबल और लोकल में? आई मीन जब हम ग्लोबल बी करके अगर ऊपर मेंशन करेंगे तो ही वो ग्लोबली काउंट होगा, अदरवाइज वो लोकल में ही जाएगा, ऐसे ऐसे होता है क्या? हाँ देखो आपको दिखाता हूँ। ग्लोबल फंक्शन सॉरी ग्लोबल इज अ कीवर्ड, ग्लोबल इज अ कीवर्ड। हाँ हाँ सर तो ग्लोबल फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे, फंक्शन के बाहर भी तो कर सकते हैं ना? फंक्शन के बाहर क्या करोगे डिफाइन करके? फंक्शन के अंदर ही डिफाइन होता है वो, है ना। चलो मैं एक बार समझा देता हूँ, आप कोड देखो आपको समझ में आएगा। देखो ये a इक्वल टू 0 डिफाइन किया मैंने, बाहर ग्लोबल है। b इज इक्वल टू 0 डिफाइन किया, बाहर ग्लोबल है। अब मैंने क्लिक किया विल वी गो टू अ ट्रिप इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्लोबल a ग्लोबल b, तो वो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन को समझ में आएगा कि अब जो a और b का रेफरेंस आएगा ना, वो इसका इंटरनल वेरिएबल नहीं है बल्कि बाहर डिफाइंड वेरिएबल्स हैं ये, ठीक है। तो उनमें जो जुड़ेगा वो फंक्शन के बाहर भी चेंजेस होते जाएंगे, ठीक है। अब मैंने लिखा है c इज इक्वल टू 0, अब आप देखो c इक्वल टू 0 यहाँ डिफाइन हो जाएगा, इसमें डिफाइन हो जाएगा c इक्वल टू 0, c इक्वल टू सॉरी 100 यहाँ डिफाइन हो गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ b इज इक्वल टू b प्लस 8, देखो ग्लोबल वैल्यू में वेरिएबल में चेंजेस हो रहे हैं, और c इक्वल टू c इंटू 20 किया, लोकल में चेंज हुआ मेरा। फिर उसके बाद जब ये कोड अंदर गया तो आप देखोगे कि a इज इक्वल टू a प्लस 2 ग्लोबल में चेंज हुआ है, ग्लोबल में चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे कि a में चेंज हो गया, b में चेंज हो गया और c का चेंज चला गया। व्हाई? बिकॉज c इज अ ग्लोबल नहीं लोकल वेरिएबल है, c डिफाइन ही अंदर हुआ है, लेकिन a और b बाहर डिफाइंड है, और आपने ग्लोबल a ग्लोबल b करके उनको यूज कर लिया, रेफर कर दिया कि दैट वाज अ ग्लोबल वेरिएबल व्हिच यू आर यूजिंग हियर, दैट्स हाउ यू रेफर अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। समझ में आ गया? सर ये ए और बी का जो प्रिंट होगा वो जो ग्लोबल में जो ग्लोबल फ्रेम में जो वैल्यू आएगा वो प्रिंट होगा ना एट दैट, ग्लोबल क्योंकि a वो और b अगर ग्लोबल नहीं होता तो प्रिंट भी नहीं होता भाई। अच्छा मैं वैल्यू 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 जैसे 32 और 6 प्रिंट हुआ है, तो वो वाला तुम पूछ रहा खुद हूँ। बताओ मेरे को ये आंसर, इसका आंसर खुद दो, ठीक है। रुको, मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, क्या क्या है बताओ। मैंने ए भी डिफाइन किया, बी भी डिफाइन किया, सी भी डिफाइन किया है। प्रिंट ए में 6 आया, प्रिंट बी में 32 आया, प्रिंट सी में क्या आएगा बताओ। एरर या कुछ भी नहीं आएगा, एरर एरर आएगा। आएगा क्योंकि सी ग्लोबली डिफाइंड नहीं है, सी लोकली डिफाइंड है। देखो नेम सी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज सी इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन, ओके, सी इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन। सो ये इशू आ गया यहाँ पे, इतना समझो बहुत बेसिक तरीके में। ये मेरा फंक्शन है, इसके अंदर जो डिफाइंड है लोकल है, एनीथिंग विच इज डिफाइंड आउटसाइड मतलब मेन मेरे कोड में जो डिफाइंड है ये ग्लोबल है, ठीक है। अगर मुझे इस ग्लोबल को मैं यहां रेफर करता हूं, मान लो कोई एक मैंने यहाँ पे ए करके डिफाइन कर रखा है 0, मैं अगर इसे यहां रेफर करता हूं, रेफर मतलब ऐसे लिखता हूं भाई ए इक्वल टू a प्लस 1 अगर जैसे लिख देता हूं तो मेरे को एरर दे देगा, एरर नेम एरर नहीं बोलेगा। फंक्शन के इनसाइड रेफरेंस एरर आता है कि भाई रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। तो अगर मुझे इस ए को यहां यूज करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ग्लोबल ए, बाकी सब कुछ लोकल है। और इसके लोकल वेरिएबल को अगर मैं बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो नेम एरर मार देगा, नेम एरर आएगा, ठीक है। तो आई विल गिव यू और गाइस दिस। सर सर अगर वो वी विल गो टू ट्रिप ये फंक्शन से पहले ही अगर डिफाइन कर दिया जाए तो कोई कुछ नहीं होगा उससे भी। क्या डिफाइन करूं मैं, डी इक्वल टू 0 डिफाइन करूं, यहां यूज करूं डी इक्वल टू डी प्लस 1,
कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पहले करो चाहे बाद में करो। और सर अगर हम प्रिंट डी इक्वल टू डी लिखा तो, प्रिंट डी लिया तो फर्स्ट लाइन वाला प्रिंट होगा क्या, डी इक्वल टू 0? यहाँ पे नहीं नहीं, नीचे एकदम नीचे प्रिंट ए बी सी जो किया है हमने 32, ये नीचे वाली लाइन इक्वल टू प्रिंट 0 डी अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो प्रिंट करेगा, लेकिन इसके बाद जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो एरर मार देगा। या तो मैं वहां से हटा दूं, रेफरेंस में दिखा देता हूँ। तो देखो डी प्रिंट कर दिया इसने 0, फिर एरर कर दिया इसने, क्योंकि वो फंक्शन में चला गया कॉल। लेकिन अगर फंक्शन से हटा दूंगा मैं ये डी इक्वल टू डी प्लस 1 तो फिर नहीं करेगा एरर। फिर वो सी अभी एरर में है तो सी वाला एरर देगा, सी इज नॉट डिफाइंड। अगर हमें निकालना है तो हमें हैशटैग लगाना पड़ेगा। नहीं ये तो नहीं निकालना नहीं, ये तो कमेंट लिख दिया ना, ये कोड ही नहीं रन होगा। कमेंट का मतलब ये होता है कोड ही नहीं रन होगा, ये तो ओके ओके कमेंटेड कोड है ये। समझ में आया सबको या कंफ्यूजन है अभी भी कोई? नहीं समझ नहीं। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आई अंडरस्टैंड, राइट? But there is global variable, local variable. Go and read in the internet if you want to. I have shown you enough exercises. Now we will do the code for. I will send you this code first of all. ठीक है, इसको कोड को चलाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वो नहीं है। रुको मैं आपको पाइथन फाइल दे देता हूँ ना यार, छोड़ो हटाओ। main.py डाउनलोड करके keep it show in folder। आपको ये फाइल दे देता हूँ, ठीक है? इसको आप नोटपैड प्लस प्लस में खोलोगे या रेपलेट में भी खोलोगे तो रेपलेट में खुल जाएगी, इसको यूज कर लेना और आप ये कोड चला सकते हो जो मैंने बनाया है। इसको ठीक करो, ऊपर नीचे करके देखो, यू विल अंडरस्टैंड कैसे चलता है। ठीक है, नाउ ओके, सो नाउ वी विल डू दी प्राइम नंबर थिंग। प्राइम नंबर वाला काम करते हैं, तो हम बनाते हैं प्राइम नंबर का फंक्शन। किसने किसने कर लिया प्राइम नंबर? उषा आप बता रहे थे, राइट? सो विल डू द प्राइम नंबर थिंग एंड देन Yes, sir, we did. हाँ ठीक है। Yes, sir, okay. हाँ, सिंपल फंडा प्राइम नंबर का क्या है? इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 एंड द रिमाइंडर इज 1 देन इट इज अ ऑड नंबर, अदरवाइज इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, मैंने कहा था 0 रिटर्न करो अगर प्राइम नंबर, सॉरी इवन प्राइम नहीं, सॉरी इवन ऑड की बात कर रहा हूं मैं। इवन ऑड था अपना क्वेश्चन, राइट? सो अगर इवन है तो 0 रिटर्न कर दो, ऑड है तो 1 रिटर्न कर दो। सिंपल है। इफ सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं डेफ इवन ऑड, ठीक है? इसको एक नंबर पास करेंगे हम। We will divide number by 2। जब परसेंटेज यूज करते हैं ना तो मतलब रिमाइंडर निकाल के दो आप। नम परसेंटेज 2, 3% 2 मतलब 3 को 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो दैट विल बी द रिजल्ट। सो इफ इट इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रिंट 1 सिंपल प्रिंट 0। ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन, ठीक है? And now you can call, or you can also say this: the number is odd. Here you can say the number is even. Let's see few numbers. 3, चेक करते हैं कुछ नंबर्स हम। 3 हो गया, 30 हो गया, सॉरी 30 को चेक करते हैं अपन, 33 को चेक करते हैं, 2, 6 को चेक करते हैं। मतलब लास्ट में अगर ऑड नंबर आएगा तो फिर तो ऑड ही है, इसको चेक करते हैं, ठीक है? और इसमें ये भी करते हैं, चलो द नंबर ये कल फॉर्मेट बताया था मैंने, फॉर्मेट कैसे यूज करना है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या हमारे पे पूछ लो या अपने कलीग से पूछ लो, बता देंगे वो लोग कैसे करते हैं। इज इवन, ठीक है, लेट्स रन इट। नंबर 3 इज ऑड, नंबर 30 इज इवन, नंबर 33 इज ऑड, नंबर दिस इज इवन, नंबर दिस इज ओके। हाँ हो गया, राइट? Any questions here on this function?
Okay, so this is your exercise again. We'll have another session on Friday. I want you guys to do the even odd thing and थोड़ा सा पढ़ो यार इसके बारे में, क्या स्कोप ग्लोबल और लोकल के बारे में. जस्ट do not watch YouTube videos, rather blog वगैरह से पढ़ो. I want you guys to improve your reading skills as per the code. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं YouTube रेफर करते हैं, मैं भी बहुत रेफर करता था, बट आई वुड से इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम YouTube तो थोड़ा सा क्या है ना कि आप you will become very much comfortable with visual skills and you will say कि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले मुझे YouTube देखना पड़ेगा, which is a bad thing. Rather than that, use blogs or Stack Overflow to understand any concept that will make you better. ठीक है? So this is your exercise. I'm not asking you to do anything else. Just do this exercise, create the even odd function. That's it. And on Friday we will do something else. थोड़ा string करेंगे. अभी हम लोग थोड़ा problem solving और logic building पे काम करेंगे अगले मतलब next 1 week. We want to build logic. Because logic building will help you in your project, SQL project में और बाकी चीजों में भी. Right? सब लोग बड़े चुप हो गए यार. कोई क्वेश्चन है किसी का? I understand कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होगा concept. सर सर हाँ मनीष. यही क्वेश्चन है ना, अगर यूजर को खुद का इनपुट डालना होगा तो वाले कोड रन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? क्या कह रहे हो? कहाँ रन कर रहा हूँ मैं कोड? मेरा अलग सवाल है सर, अगर यही क्वेश्चन को यूजर को खुद का इनपुट डालना होगा तो? यार यूजर का खुद का इनपुट वाला कोड ना यहाँ पे मतलब यूजर से इनपुट लेना है तुमको. यूजर से इनपुट देना है सर, यूजर से इनपुट वाला कोड. यूजर से इनपुट लेने वाला जो कोड है ना वो सब लोग लिखते हैं शुरू में, बट आई एम नॉट अ वेरी मच बिग फैन ऑफ दैट, क्योंकि उसने ना आदत बेकार पड़ जाती है. तो आप फंक्शन वाला कोड लिखो, वो ज्यादा बेटर है. नहीं तो आप क्या करोगे ना, हर जगह आप यूजर इनपुट डालने की आदत डाल लोगे. अभी आप ये यूज करो, यूजर इनपुट बहुत सिंपल चीज है. एक इनपुट इक्वल टू लिखना पड़ता है, वो प्रॉम्प्ट एंटर होता है, उसमें डालो और आ जाएगा. नहीं मैंने ना वो उसके मतलब एक महीना रन हो गया, लेकिन दूसरा मुझे पता नहीं क्यों एरर दे रहा है. अच्छा देखो यार क्या एरर है क्या नहीं है, रिजॉल्व करो आप, है ना. हाँ बट यूजर इनपुट की आदत मत डालना. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हियर आल्सो कि यार यूजर इनपुट यूज करने की आदत डाल लेते हैं, वो नहीं करना है. आप सिंपल फंक्शन बनाओ. हाँ ये जो गोविंद ने लिखा ना, इंट इनपुट एंटर नंबर, डोंट यूज दैट, क्योंकि आपकी आदत वो एंटर करने की पड़ जाएगी, आप यूज नहीं कर पाओगे सही से फंक्शन. राइट? सो यूज फंक्शंस. फंक्शन में वैल्यू डालो. यूजर से कोई इनपुट लेता नहीं है रियल वर्ल्ड में. ये सिर्फ एक मॉक के लिए किया गया प्रोग्राम. जब आप लिखते हो तो कभी भी आप यूजर से इनपुट नहीं लोगे ऐसे. राइट? जब आप पाइथन प्रोग्राम आप लिखोगे ना तो मोस्टली यूजर से इनपुट नहीं लोगे, आप आर्गुमेंट्स वगैरह यूज करोगे, आर्ग पास जैसी कोई चीज यूज करोगे. राइट? तो या फिर योर कोड इज यूर राइटिंग सम क्वेरी और यूर राइटिंग सम कोड which is being utilized by someone who is developing an application, तो वो आपके फंक्शन को ही पैरामीटर भेजेगा. तो इसलिए ऑलवेज मेक इट अ हैबिट ऑफ यूजिंग फंक्शंस. दैट इज व्हाई आई हैव टॉट यू फंक्शंस फर्स्ट. सतीश आप हो अभी क्लास में? सतीश सर यस सर हूँ. सतीश कितने दिन बाद पढ़ा गया था आप लोग की क्लास में फंक्शन? जब आप पहले पढ़ते थे तो शुरू में पढ़ा दिया गया था? नहीं पहले तो लिस्ट टपल्स ये सब पढ़ाया गया था. सबसे लास्ट में फंक्शन पढ़ाया गया होगा. राइट? हाँ 1 महीने बाद कम से कम. हाँ मैं इसलिए फंक्शन पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. फंक्शन में मॉड्यूलर कोड लिखा जाता है. आप रिपीटेटिव कोड से बचते हो. आप अपने फंक्शन को आप अभी कभी कोड उठा के किसी का डॉक्यूमेंट देखना गिटहब में, फंक्शन बना होगा, फंक्शन के ऊपर बढ़िया सा कमेंट लिखा होगा, ये मेरा फंक्शन है, ये ऐसे. आई वांट यू गाइस टू स्टार्ट डूइंग दैट. ठीक है? अच्छा सतीश तुमको क्लियर हो गया ग्लोबल लोकल का कंसेप्ट? हाँ सर. हाँ ठीक है. और किसी का कोई क्वेश्चन था सिद्धेश के बाद ना? मनीष आपका क्वेश्चन था क्या? हाँ था कि मैं वो पूछ रहा था, आप जो ऑनलाइन कोड रन कर रहे थे पाइथन का, वो कौन सी साइट पे कर रहे थे? एक तो पाइथन ट्यूटोरियल आपने कल लेक्चर में बताया, उसके बाद में था नहीं. एक रेपलेट है. ओके इस पे जाओ, पाइथन का रेपल क्रिएट करो और बनाओ, चलाओ कोड. ओके थैंक यू. ठीक है. कोई और क्वेश्चन है गाइस? नो सर. सीक्वल का कैसा चल रहा है काम सबका? ठीक है.
चलो SQL का पूछना था सर। हाँ यार बताओ गोपाल। सर आपने जो बनाने को बोला ना, तो हमने वो हमारा मोस्ट ऑफली फाइनल हो गया है किस पे करना है, बट हमें थोड़ा सा ये हिंट चाहिए था कि आपको हमारे तरफ से कैसा ये चाहिए, आंसर चाहिए, यानी प्रोजेक्ट किस हिसाब से चाहिए, कुछ डेमो अगर आप कुछ एक आधा डेमो या कुछ दिखा सकते हो कि हम मुझे इस हिसाब से। एक काम करते हैं ना, एक सैटरडे मीटिंग रखते हैं 2 घंटे की, उसमें सब लोग अपना अपना प्रोजेक्ट का अभी तक का वर्क दिखाएंगे तो फिर मैं बता दूंगा। एंड सेकेंडली पूछना था सर, जो भी डेटा लेना है वो हमें डोमेन से लेना है, सही है? तो वहां पे अगर हम अमेज़न पकड़ रहे हैं तो उसमें फिर वो भाई गोपाल अमेज़न पकड़ रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं, कम से कम 100 टेबल बनेंगे अमेज़न की। हाँ सर, उसमें फिर हम देख रहे थे सर, तो उसमें फिर वो मेल आईडी और जो है, जैसे अगर नहीं, हम कंसीडर करेंगे अमेज़न तो पे कुछ पहली नहीं, चीज मैं डेटा तुमको नहीं बता देता मिलेगा। हूँ, अगर कोई अमेज़न चूज कर रहा है तो मुझे दोनों चीज चाहिए। मुझे ये भी चाहिए कि अमेज़न पे कौन सा सेलर अपना सामान बेच सकता है। अमेज़न का ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता है पूरा, राइट? FBA होता है। यू हैव टू रीड अबाउट दैट। That's what I want you guys to do. Read about that, create entities on that. I want you to understand a business. ठीक है, ताकि कल को अगर आपको केस स्टडी में या मिले ये चीज या फिर हाँ बोलो। लिंक also मेंशन करना पड़ेगा। लिंक मेंशन करना पड़ेगा। वो जो अमेज़न का बात कर रहे थे ना। हाँ। नेम और बिलिंग मेंशन करना पड़ेंगे क्या, पूछ रहे हैं? नेम और क्या? हाँ वही नेम, बिलिंग, यानी कौन से बायर ने बाय किया है उसका। ये सबका तुमको वो बनाना पड़ेगा यार। टेबल तो सबका बनेगा, पूरा अमेज़न का टेबल बनेगा, सेलर का टेबल बनेगा। देखो तुम देखो फंक्शनैलिटी से मैं तो बोल रहा हूं। लिंक मैंडेटरी है मेंशन करने का। क्या नहीं समझ में आ रहा है यार, सॉरी। हेलो गोपाल, यू कैन आस्क हिम। वो बोल रहा है सर कि मेन जो बायर्स का जो मेल आईडी है या फिर बिलिंग आईडी, उसका डिटेल बनाना पड़ेंगे, तो उसका टेबल बनाना पड़ेगा, या फिर कितना सेल हुआ है वो भी बनाना पड़ेगा। सब बनाना पड़ेगा भाई। कितना सेल हुआ है वो तो रिपोर्ट में आएगा। कितना सेल हुआ है वो तो रिपोर्ट में आएगा। मैं तुमको बहुत सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ। अमेज़न वाला, अमेज़न में क्या होता है? रेटिंग भी शो करना पड़ेगा। रेटिंग हाँ, यस ऑब्वियसली। लेकिन सर सेल नहीं बता पाएंगे ना वहाँ पे कितना हुआ है। वो तुम अपना खुद का डेटा बनाओ और उसमें से क्वेरी बना के दिखाओ कितना सेल हुआ है। मैं एक सिंपल बताता हूँ तुमको। देखो, एक सिंपल फंड टेबल है। आपने एक सिंपल सेल्स का टेबल बनाया, आपने सिंपल सेलर का टेबल बनाया, सेलर आईडी है, ठीक है, सेलर का नाम है, सेलर का बेसिक इंफॉर्मेशन है। एक प्रोडक्ट का टेबल है। प्रोडक्ट का टेबल क्या है? सेलर आईडी। मतलब प्रोडक्ट का टेबल में क्या होगा? सेलर कौन सी टेबल। मैं तो एक्चुअली एक ई कॉमर्स वालों के साथ काम कर चुका हूँ। आई नो कि किस तरह का डेटा होता है, तो आई नो दैट, राइट? तो उसमें क्या होगा कि भाई प्रोडक्ट के टेबल में आपके प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का इमेज होगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, कौन से सेलर का प्रोडक्ट है ये वो होगा, प्रोडक्ट का क्या कैटेगरी है, फिर कैटेगरी का एक अलग टेबल होगा। कैटेगरी में क्या टेबल आएगा? अपैरल अलग कैटेगरी है, फिटनेस इक्विपमेंट अलग कैटेगरी है, राइट? अगर कैटेगरी वाइज तो बहुत सारे टेबल बनाना है सर। तो सर हम अगर कोई 200-400 कैटेगरी अगर बना दे तो उसमें काम चलेगा या पूरा से पूरा बनाएगा? नहीं, आप टेबल अमेज़न में बहुत सारी कैटेगरी। हाँ इमादुल, डेटा एक दो ही बनाना, टेबल सारी बना दो। अच्छा, डेटा आप ज्यादा मत बनाओ। डेटा कम कर सकते नहीं, डेटा सारे बनाना पड़ेगा ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, डेटा आप सारा मत बनाना, टेबल सारी बनाना। लेकिन हाँ सर, ठीक है। ओके सर, वी विल ट्राई। Okay, sure. Okay, guys. If nothing else, let's end the session, right? And we'll have a catch-up session on project on Saturday. No problem. Okay, sir. Thank you. ठीक है, चलो. Okay, guys. Bye bye. And do this task, right? Python का जो मैंने दिया, please do it, everyone. Bye bye. Thank you so much. Bye.